साइड में रखने के लिए, बिकॉज ये तो होल है ना, यहाँ जगह नहीं है। करिए शुरू। इज दिस ऑन? ओके। सब तो पहले इन्ने शॉर्ट नोटिस ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 15 ਜੂਨ ਔਨਵਰਡਸ ਹੈਗੀ। ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਜਦ BLO ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਵੰਡਣਗੇ, ਉਹ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ 2026। ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਹ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਪਟੈਂਬਰ 2026 ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ। SIR ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ, no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 24,453 BLOs, 2,476 supervisors, 117 EROs, 234 AEROs, supported by the entire election machinery of the state of Punjab, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ BLO ਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ BLO, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ERO ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਟਸ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਡੇਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ 1/1/2003। ਤਾਂ 1/1/2003 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ 83.69% ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,14,57,160 ਵੋਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, if you want I can repeat, 2,14,57,160 ਵੋਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,56,656 ਵੋਟਰਸ ਦਾ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ 93.43% ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ BLO ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ BLO ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BLO ਨੇ ਲੈ ਕੇ ERO ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ BLO ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BLO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2003 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਸਾਡੇ BLO ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਪਾਈਟ देयर ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ, ਟੋਟਲ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ASDD ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਬਸੈਂਟ, ਸ਼ਿਫਟਡ, ਡੈਥ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਇਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ BLO, ਔਰ BLO ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, EROs ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ DOs ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ BLO ਨੇ BLA ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੂਥ ਦਾ ਆ BLA ਹੈ, ਇਸ ਬੂਥ ਦਾ ਆ BLA ਹੈ। BLO ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ASDD ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਸ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ BLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਗਾ। ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਕਲੇਮਸ मतलब ਈਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਕਲੇਮਸ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਰਮ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਈਆਰਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ 8 भर सकते। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 सिर्फ और सिर्फ क्लेमेंट वालों भरी जा सकती है। क्लेमेंट मतलब जे मेरी वोट बननी है तो मैं भर सकती हाँ, मेरे वालों होर कोई भी जेड़ा है वो नहीं भर सकता है। ऑब्जेक्शन किनू आपां कहंदे? ऑब्जेक्शन मतलब जे कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट करदा, मानिए किसी डेड परसन का जिन्हां दा देहांत हो गया, उन्हां दा नाम हजे भी लिस्ट 'च हैगा, तो फॉर्म 7 भर के या कोई शिफ्ट आउट हो गया है, ये जेड़ा फॉर्म भरिया जाना है उस पार्ट उस एसी दे किसी इलैक्टर वालों दिता जा सकता है। बीएलओ आप भी भर के दे सकते या उन्हां दे उस एरिया का कोई भी होर इलैक्टर जिहड़ा हैगा वो भर के दे सकते हैं। ये तो बाद शुरू होगा नोटिस इज द फेज। नोटिस इज द फेज जिहड़ा हैगा वो होगा 31 जुलाई तो ही 28 सितंबर तक नोटिस द फेज हैगा। नोटिस जिहड़ा दिता जाना है वो किहनां नूं दिता जाना है? ईआरओ उन्हां नूं नोटिस देणगे जिन्हां दा एन्यूमरेशन जिन्हां दी लिंकिंग जिहड़ी हैगी वो नहीं हो सकी है। इस करके साडी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि असी मैक्सीमाइज करिए अपनी लिंकिंग नूं। जिवें मैं तुहानूं पहले दस्सिया, असी ऑलरेडी 83% लोकां नूं लिंक कर चुके। साडी कोशिश होगी कि 25 जून नूं डोर टू डोर हाउस टू हाउस शुरू होने तो पहले साडी परसेंटेज जिहड़ी है वो 90% टप जाए। तो जेड़े बंदियां दी लिंकिंग नहीं हुई है उन्हां नूं उन्हां दे वोटर लिस्ट दे विच जिहड़ा एड्रैस दिता गया है उहदे विच नोटिस दिता जाना है। या तो जे लिंकिंग दे विच कोई डिस्क्रिपेंसी नोट की गई है, सीरीयस डिस्क्रिपेंसी जे कोई नोट की गई है, तो उस केस दे विच जिहड़ा हैगा नोटिस दिता जाऊगा। नोटिस 7 दिन तो घट दा नहीं दिता जाऊगा। 7 डेज़ का नोटिस जिहड़ा है ईआरओ साहिबान देणगे, उन्हां नूं सुनन दा मौका देणगे। सुनन दा मौका देण तो बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर जिहड़ा हैगा वो पास करनगे। इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहांगी, जे ईआरओ साहिब दे उस स्पीकिंग ऑर्डर ते किसी दी संतुष्टि नहीं है, व्यक्ति कहता है नहीं जी मेरी वोट इत्थे बननी चाहिए सी ते तुसी जिहड़ी है नहीं बनन दित्ती, या कोई होर कहता है कि इन्हां दी वोट इत्थे नहीं बननी चाहिए सी, तां इहदा अपील दा प्रावधान है। ईआरओ दे स्पीकिंग ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर जो कि डिप्टी कमिश्नर है उन्हां दे कोल अपील पै सकती है। जे उन्हां दे ऑर्डर नाल भी सानू संतुष्टि नहीं है, व्यक्ति नू क्लेमेंट नू संतुष्टि नहीं है, तो वो सीओ कोले अपील जिहड़ी हैगी वो पा सकते हैगे। जिहड़े डॉकूमेंट्स पुष्टि करन लई दिते जा सकते हैं वो डॉकूमेंट्स दा मैं तुहानू कुछ डॉकूमेंट्स पढ़ के सुना देनी हाँ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ क्लीयर किया गया है कि ये ਜਿਹੜੀ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज़ इंडिकेटिव। एक मिनट मैनू लिस्ट देना, सॉरी। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर issued to a regular employer or pensioner of state government, central government, PSU, any identity card, certificate or document issued by the government or local authorities, any card, identity card जे किसी भी सरकारी अदारे ने तुहानू इशू किया है, या बैंक ने इशू किया है, या पोस्ट ऑफिस ने किया है, LIC ने किया है गई है, वो भी वोटर साहिबान नू ये दसना चाहांगी
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन ECI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। Thank you so much. Now we will invite questions. The whole thing? The schedule and the total. Ma'am, Highlights? ma'am, the schedule, the total notes, and on what basis you will do it? Okay. नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, पंजाब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मतलब SIR उसका शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ। जो प्रिपरेटरी फेज़ है, तैयारियों का दौर, वो 15 जून 2026 से होगा। हाउस टू हाउस जिसमें हर घर में हमारे BLO जाएंगे, वो 25 जून 2026 से लेके 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स की जाएगी 24 जुलाई को। ड्राफ्ट रोल जिसमें कि सारे वोटर्स का नाम शामिल किया जाएगा, वो 31 जुलाई को होगा। फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का दौर चलेगा 31 जुलाई 2026 से लेके 30 अगस्त 2026 तक। नोटिसेस जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर देंगे वो 31 जुलाई 2026 से लेके 28 सितंबर तक देंगे, और जो फाइनल वोटर सूची की प्रकाशन होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2026 को। इसमें 24,000 से ज़्यादा BLO काम करेंगे, 2,500 के आसपास सुपरवाइजर्स, 117 EROs और 234 AEROs कार्यरत होंगे इस पूरे प्रक्रिया में। तैयारियों के दौर में एक दौर प्री SIR मैपिंग का भी था। जिस प्री SIR मैपिंग से हमारा मतलब ये है कि 2003 की जो वोटर सूची है, जिस साल में पिछली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पंजाब में की गई थी, उसके साथ 2025 की वोटर सूची का मिलान। 2025 के वोटर सूची में जो 2 करोड़ 14 लाख लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके 2003 के साथ मिलान कर लिया गया है। 83.69% वोटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स की 2003 की वोटर सूची के साथ मिलान या तो उनके खुद के नाम थे, या तो उनके पेरेंट्स के नाम थे, या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम थे, उसके साथ मिलान जो है वो कर लिया गया है। जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का फेज़ होगा उसमें BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घरों में आएंगे, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म किस तरह से भरना है उसके बारे में अवगत कराएंगे, और उसके बाद भरे हुए फॉर्म की एक कॉपी आपको देंगे जिस पे वो एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग भी देंगे, और एक फॉर्म वो अपने पास लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म किसी भी कारण से वापस नहीं दे पाते हैं तो उसकी एक अलग सूची में बनेगी जिसे हम कहते हैं ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट। उस पूरी सूची को जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो रिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके साथ शेयर किया जाएगा, साझी की जाएगी, और उसके बाद एक मीटिंग करते हुए हर एक पन्ने पे साइन किया जाएगा कि हाँ वाकई ये व्यक्ति जो है एब्सेंट थे या शिफ्टेड थे, या इनकी डेथ हो गई है, या इनकी किसी और पार्ट में डुप्लीकेट वोट जो है वो पाई गई है। जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का फेज़ है उसमें फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 किसी प्रार्थी के द्वारा दायर किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति ये कह सकते हैं कि मैं एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर सका तो मैं फॉर्म नंबर 6 भर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा जो साइन करना अत्यंत ज़रूरी होगा। अगर कोई करेक्शन कराना चाहते हैं
एड्रेस में या किसी और फील्ड में, तो वो भी जो है फॉर्म नंबर 8 इसी फेज में दिया जाएगा। अगर उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोई भी इलेक्टर किसी और की वोट ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए आपत्ति जताना चाहते हैं, वो आपत्ति फॉर्म नंबर 7 के रूप में जो है जताई जा सकती है। इस फेज के बाद नोटिसेस दिए जाएंगे ईआरओ के द्वारा। उस नोटिस हर वो व्यक्ति जिसकी प्री एसआईआर मैपिंग नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, उनको नोटिस दिया जाएगा, या प्री एसआईआर मैपिंग में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क रह गया हो। तो मैं सभी वोटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स का प्री एसआईआर मैपिंग हो जाए। तो आप आज भी अगर चाहें, अभी से लेके 15 जून या इवन 25 जून तक आप हमारे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, और अब भी आप अपनी प्री एसआईआर मैपिंग जो है करवा सकते हैं, जो कि नोटिसेस इशू करने की ज़रूरत ही जो है वो हमें ना पड़े। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत होगी आपको पुष्टि करने के लिए, वो है सरकार के द्वारा किसी भी भारत सरकार, स्टेट सरकार के द्वारा इशू किया गया कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, कोई पेंशन के कागज़ हो, एससी ओबीसी सर्टिफिकेट हो, या बर्थ सर्टिफिकेट हो, या पासपोर्ट हो, या आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, इनमें से सारे सर्टिफिकेट्स ही जो है वो माने जाएंगे। आधार कार्ड, जहाँ तक आधार कार्ड का संबंध है, आधार आपकी आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आपकी सिटीजनशिप या आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस का प्रूफ जो है वो नहीं मानी जाती है। मैं अपने मीडिया बंधु के राही सभी वोटर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बीएलओस के साथ कोऑपरेट करें। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग अ वेरी क्लीन इलेक्टोरल रोल। थैंक यू सो मच। So we start taking questions? Okay, right. ठीक है, बहुत ये सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ये सबसे पहले कल हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में सूचना देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे, उनके मन में जो भी एप्रहेंशंस है वो दूर करेंगे। साथ ही साथ हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें बेनती करेंगे कि वो हर एक बूथ दे उत्ते, वी हैव 24,453 बूथ्स, हर बूथ दे उत्ते हर पार्टी जेड़े हैगे बीएलए जरूर नियुक्त करन, बूथ लेवल एजेंट। वो बूथ लेवल एजेंट उत्थे दा जेड़ा है इलेक्टर होना चाहिदा है, उन्हां नूं वोटर सूची दे बारे जानकारी होनी चाहिदी है। हर पड़ाव दे उत्ते बीएलए नाल और पॉलिटिकल पार्टी नाल सारी लिस्ट जेड़ी हैगी वो साझी कीती जाऊगी। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2025 ਤੇ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ASDD ਲਿਸਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ BLA ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ECI ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਬਣੇਗਾ, ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਹਰੇਕ ERO ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮਸ ਔਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ड्राफ्ट रोल की प्रकाशना तो पहले BLA बूथ लेवल एजेंट नूं ये अधिकार दिता गया है कि वो एक दिन च 50 बंदियां दा 50 वोटर्स तक का भरिया होया एन्यूमरेशन फॉर्म BLO कोल जमा करा सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल BLAs, दिस इज़ फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो हाँ जी, तो हर स्टेज के उत्ते पॉलिटिकल पार्टी की संतुष्टि भी कराई जाएगी तो इट विल बी अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। हाँ जी कल यहीं पर आपने बुलाया सभी पॉलिटिकल पार्टी? जी, कल हमने 3 o'clock
ਇੱਕ BLO ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BLOs ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ BLO ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ सो ऐसा है कि एक BLO के पास कोशिश की जाती है कि 300 घर से ज़्यादा ना दिया जाए 300 इज़ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो असी करते हैं हाँ कभी कभी उसमें 250 भी हो जाता है और कभी कभी 310 भी हो जाता है बट द एवरेज इज़ 300 और कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं हम रखते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसमें 1200 वोटर से ज़्यादा हो सो दैट इज द अपर लिमिट 1200 वोटर एंड 300 घर ज्यादातर बूथ्स जो है उससे कम के ही होते हैं ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਔਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ देखिए ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ देखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंस की डेफिनेशन दी गई है जहां आप रिसाइड करते हैं तो अगर वो यहाँ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उनकी वोट यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू होगी अगर वो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो फिर तो वो ERO जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंस के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं so it will differ from case to case and the ERO will have to take a call What is on the that. total? What is the total number of voters? Ma'am, what is the total number of voters and how will you accommodate the first time voters? They come like they are not mapped now because they will be voting the first time. So जो वोटर अभी बने हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैपिंग नहीं हुई है क्योंकि मैपिंग जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ उनकी नहीं उनके पेरेंट्स के साथ भी हो सकती थी 2003 में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी हो सकती थी सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मैप्ड नहीं है दूसरी चीज़ अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि नए वोटर वोट कब बनाएंगे तो अभी जब हमारे BLO हर एक के घर में जाएंगे तो उनके साथ कम से कम 30 फॉर्म नंबर 6 होंगे जो बच्चे अब 18 साल के हो रहे हैं विद द क्वालिफाइंग डेट उनको हम वही फॉर्म देंगे और वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन वाले पीरियड में फॉर्म्स जो है वो वापस कर Ma'am, सकते हैं total voters as of now. 2,14,57,000 के आसपास Ma'am, दो क्वेश्चन है BLO ऑलरेडी नियुक्त कर दिए गए हैं BLO गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही होते हैं देर आर 24,453 पीपल हु आर ऑलरेडी डिप्लॉयड ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BLA ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BLA ਹੋਵੇ देखिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can only request because ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ BLA ਜਿਹੜਾ है वो ज़रूर लाओ मैम माइग्रेटरी वोटर्स की बात जैसे पहले उन्होंने की मोस्टली उनके पास आधार कार्ड ही होता है और यही रहता है कि उनकी वोट ही काटी जाती है और क्या प्रूफ वो दिखाएंगे जो माने जाएंगे देखिए ऐसा नहीं है कि उनके पास वही एक डॉक्यूमेंट जो है वो होता है आई एम श्योर जहाँ से भी वो हैं वहाँ के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास होते ही होंगे सो ये तो ERO ही पुष्टि कर सकेंगे उस मौके पे लोगों से वो बयान ले सकते हैं आसपास पूछ सकते हैं दैट वी विल लीव टू द डिस्क्रिशन ऑफ द वो बट इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रक्शन दैट आधार कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ਨੰਬਰਦਾਰ MC ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ERO ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਹੋਮਲੈਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਅ ਹੋਮਲੈਸ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ, even if he or she does not have any documents, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ BLO ਤੇ ERO ਨੂੰ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। मैम दो क्वेश्चन है मैम। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਬੰਗਾਲ BLOs ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ BLOs ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ? देखिए मैं दूसरे स्टेटों के बारे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। पंजाब एक बहुत अलग स्टेट है। पंजाब के जो लोग हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ 100% ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ 100%, ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 93% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਦੈਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ BLO ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ EROs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ SDMs ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ AEROs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਸ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ गवर्नमेंट मशीनरी भी अवेलेबल हैगी। मैम BLOs को क्या मैंडेटरी किया गया है जो आधार कार्ड जो दे रहे हैं एज आइडेंटिटी जो है, तो ये मैंडेटरी है उनको वेरीफाई करना या नहीं? इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा या सिर्फ उनके डिस्कशन पे छोड़ दिया गया है? I'm sorry, I don't understand the question, but I will repeat. BLO या ERO के पास आधार के संबंध में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि आधार को एज 13th डॉक्यूमेंट लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ECI ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਰਸਨ that mera Aadhaar can be used to establish that I am Anindita Mitra, but not my residence and not my citizenship. ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 83% ਕੁਝ % ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ होल्ड किया जाएगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, जितनी ज़्यादा प्री SIR मैपिंग हो जाएगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतने कम नोटिसेस इशू होंगे कि हमने बंदे को ट्रेस भी कर लिया, हमने 2003 के साथ उनका मिलान भी कर लिया। तो हम आज भी कार्यरत है इस चीज़ में। रोज़ ऑन एन एवरेज 20 से 30 हज़ार वोटर्स की अभी भी प्री SIR मैपिंग चल रही है, रोज़ ऑन अ डेली बेसिस। हैविंग सेड दैट 100% ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ फर्ज करिए अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है या वो परमानेंटली शिफ्ट आउट हो गए हैं, तो उनका हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन के समय पे ही घर में जाके ही आसपास से या अगर वो मिलते हैं उनसे पुष्टि जो है वो की जा सकेगी। बट हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे मशीनरी की कोशिश है कि हम 90% एटलीस्ट जो है वो क्रॉस कर लें। मैम मैम क्वेश्चन है मेरा। मैम कुछ स्टेट्स में मैम इलेक्शन में कुछ विवाद हुआ, आपने कहा कि हम पंजाब की बात करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैम उनसे जोड़ नहीं रहा। बिहार में और पश्चिम बंगाल में हमने देखा जो ऑब्जेक्शन वाला जो पॉइंट है उस पर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्वेश्चन रेज किए। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति ने 600-700 वोट पे ऑब्जेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनको लिस्ट से बाहर कर दिया। तो इसको आप कैसे देखेंगे कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहे, इस तरह का विवाद यहाँ पर ना हो? ड्राफ्ट रोल में इंस्ट्रक्शन CCI की ये कहती है कि ड्राफ्ट रोल से किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई करे नहीं काटा जा सकता है। नहीं मैम, मेरा सवाल ये है कि ऑब्जेक्शन क्या मैं एक व्यक्ति 600-700 लोगों पे ऑब्जेक्शन कर सकता जी, हूं? ऑब्जेक्शन जो है उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोई भी इलेक्टर कर सकते हैं, उस पे गिनती की पाबंदी जो है वो नहीं है।
अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा मैम, जैसे अपने जो बड़े महानगर हैं, जैसे लुधियाना की बात करें, जालंधर, मोहाली, यहाँ बाहर से काफ़ी लोग आकर बसे, जैसे हिमाचल से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो उनके पीछे का रिकॉर्ड उनके दादा या पिता का नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर बसे हैं, उनके बच्चे हुए, उनके वोट्स बने, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे उस सिचुएशन को कि जिनके पास इस तरह की मैपिंग नहीं हो पाई? देखिए 2000 सॉरी मैं पहले शायद क्लियर नहीं कर सकी। जो 2003 की वोटर सूची है वो पंजाब की है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में SIR जो हुई वो 2002 से लेके 2004 तक हुई, अलग अलग प्रांतों में। जो वोटर सूची अवेलेबल है वो सारे स्टेट्स की वोटर सूची अवेलेबल है। सो जो हमने मैपिंग की है वो मैपिंग अकेले पंजाब के वोटर सूची के साथ नहीं है। हमारे बहुत सारे वोटर्स जो है अलग स्टेटों से आए हैं, हमने 2003 में उनके वोट के साथ जो है मैप की है, उस स्टेट के वोट के साथ। बाकी लोगों की बात छोड़िए, मेरी 2003 में वोट जो थी वो छत्तीसगढ़ में थी, मैं तब सर्विस में नहीं थी। मेरे और मेरे हस्बैंड की वोट आज भी 2003 के लिस्ट में वहाँ पे शो हो रही है छत्तीसगढ़ की, वहाँ के साथ जो है वो मैपिंग की गई है। सो इट डज नॉट मैटर दैट इफ योर वोट एज ऑन दैट डे वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज समवेयर इन द कंट्री। जी प्री मैपिंग की आप बात करें कि 83% के आसपास, यानी 35 लाख के आसपास वोटर्स जो है उनकी मैपिंग नहीं हो पाई जी। क्या ये फिगर फाइनल रोल में भी रिफ्लेक्ट होगा या इसमें चेंजेस आ सकते हैं? अगर 20 से 25 लाख वोटर कट जाते हैं तो किसी भी चुनाव में चीजें पलट सकती तो हैं। मुझे सवालों से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत क्लियरली समझा नहीं पा रही हूँ। प्री SIR मैपिंग सरल भाषा में होमवर्क के जैसा है। तो हमने अपना होमवर्क किया और होमवर्क करके हमने कुछ लोगों को मैप कर सके, कुछ लोगों को मैप नहीं कर सके। जिनको हम हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन दी फेज तक भी हम मैप नहीं कर पाएंगे, उन्हें हमारे ERO जो है वो नोटिस इशू करेंगे। और जहां तक ड्राफ्ट रोल का सवाल है, जितने लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म हमें भर के वापस आएंगे, हर चाहे उसकी प्री SIR मैपिंग हुई हो, चाहे उसकी प्री SIR मैपिंग ना हुई हो, उन्हें ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। जिनके में वोट कटे, कई बार उन्होंने कहा कि BLO हमारे घर पर गए ही नहीं, तो जो आपने बोला कि 4 बार जाएंगे, क्या उसका भी कुछ आप रखोगे? जी, उसके लिए हर घर के लिए हम एक डेट्स 3 डेट्स जो होंगे उनके, एक डेट होगा देने का, फॉर्म देने का, 3 डेट उनके होंगे। देखिए 3 डेटों पे उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। हो सकता है जब वो गए उसी वक्त उन्हें वो मिल गए, उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि लो भाई अभी ले लो, अभी भर देते हैं, और भर के दे देते हैं। तो हो सकता है 3 बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बट जस्ट इन केस उन घरों के लिए जहां 3 बार जाने की ज़रूरत पड़ जाए, वी आर मेकिंग अ पेस्टेबल फॉर्म, जो कि वो वहाँ पे स्टिकर के तौर पे घर के बाहर, और उस पे वो लिख के आएंगे कि मैं आज आई, आज नहीं थे, साइन करेंगे, और अगले दिन मैं इस दिन पे आऊँगी या आएंगे। वैसे क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल की भी सीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे BLO साहिबान पहले ही फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि आप हैं कि नहीं हैं जी, विच इज़ अगेन एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि प्री SIR मैपिंग ऑलमोस्ट 84% हो गई है जी। I am sorry, I will not have that information. सब बैठे हैं। Once the SIR starts, अभी तो जैसे 1 महीने का टाइम रहता है, but even otherwise, I think 80% of the people sitting in this room have my number, and the other 20% can take the number. So please feel free to contact me any point of time. जहाँ आपको लगता है आपने कोई सवाल पूछना है, please पूछिए. I am available round the clock to address your queries. Thank you so much. Thank you.